This is the revision video for class 10 chapter 1st chemical reaction and equation. Now come to the chemical change. So before we understand the significance of a chemical chain, let us demonstrate it with the help of few activities. ठीक है, तो एक्टिविटी फर्स्ट है, take a piece of magnesium ribbon nearly 2 cm long, clean its surface by rubbing with a sandpaper, hold the ribbon with a pair of tongs and burn it in air, either on a spirit lamp or on a burner. The ribbon burns with brilliant or dazzling flame. Energy in the form of heat and light is emitted. As a result of burning of the ribbon, a white ash or white powder is formed and can be collected in a china dish or on a watch glass. On examination, the white powder is found to be magnesium oxide and has been formed by the combination between magnesium and oxygen, which is a constituent of air and supports combustion. कहने का अर्थ है जब मैग्नीशियम रिबन को हम एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है और वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन से बनता है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड एक्टिविटी। देखिए, इन 2 separate glass beakers dissolve small amount of lead nitrate and potassium iodide in water. Both these solution will be colored. देख रहे हैं, दोनों कलर जो सोल्यूशन हमारा पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन और लेड नाइट्रेट सोल्यूशन दोनों के हमारे कलर्ड हैं। ठीक है, तो बोथ दिस सोल्यूशन विल बी कलर्ड। नाउ ऐड potassium iodide solution slowly to the lead nitrate solution. A yellow precipitate is formed at the bottom of the beaker as shown in the figure. On analysis, it is found to be lead iodide. It does not dissolve in water and therefore separate as a precipitate. ठीक है, कहने का अर्थ है कि जब हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन और लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को जब आपस में मिक्स करते हैं तो एक येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जो कि लेड आयोडाइड होता है, जो कि पीले फॉर्म में नीचे मिलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। देखिए, इन ए कोनिकल फ्लास्क टेक ए फ्यू ग्रेन्यूल्स फाइन पीस ऑफ जिंक. To this, add dilute sulfuric acid or dilute sulfuric acid, hydrochloric acid or sulfuric acid. Solution drop wise from a thistle funnel. देखिए, ये thistle funnel है, फिगर है पूरा। ठीक है, a chemical reaction immediately start. Bubbles of a gas evolve, accompanied by ब्रिस्क इफरवेंसेस, अर्थात एकदम बुलबुले के साथ गैस बाहर निकलना। अपॉन टचिंग द फ्लास्क इज फाउंड टू बी हीटेड, और जब फ्लास्क को टच करते हैं तो हम पाते हैं कि क्या गर्म हो चुका है। दिस मीन्स दैट ए केमिकल रिएक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस इज एक्जोथर्मिक, यानी जो इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है एक्जोथर्मिक हो रहा है क्योंकि एनर्जी निकल रही है। On analysis, the gas evolved is identified as hydrogen. कि वो कौन सी गैस निकली है? हाइड्रोजन. It is collected over water because it does not dissolve in it. क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है इसलिए इसे
वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। सिंस द गैस हैज डिस्प्लेस वाटर, वाटर को हटाता है, द प्रोसेस इज नोन एज downward displacement of water. The solution left in the flask is colorless while a black deposit is formed around the granules. Granules के चारों तरफ ब्लैक ब्लैक जो है डिपोजिशन होता है और जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, कलरलेस हो जाता है था, वाइट हो जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके थ्रू डालते हैं ड्रॉप वाइज, तो क्या होता है कि जो जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, तो इसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्टेड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें वाटर फिल रहता है। धीरे धीरे जब इसमें ऊपर से हमारा क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस फिल होता है तो वाटर का लेवल नीचे जाता है, यहाँ से हमें पता चलता है। और ये पूरा कंटेनर हमारा इज़ोथर्मिक है, इसलिए गर्म हो जाता है। Now come to the characteristic features of chemical changes. Okay, we have studied a few activities to illustrate some chemical changes based upon the observation. The feature associated with this change are summarized up as follows. देखिए क्या फर्स्ट की there is generally a change in color, ठीक है, कलर में चेंज ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द चेंज, ठीक है, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज उसके कलर में अगर चेंज होता है तो भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। एग्जांपल इन द बर्निंग ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन नेल, ठीक है, रस्ट इज ब्राउन इन कलर वेयर एज द नेल आर ब्लैक, जबकि नील हमारा काला होता है और क्या होता है, और जो रस्टिंग होती है तो उसका जो कलर होता है वो ब्राउन हो जाता है। सेकेंड है द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस नॉर्मली चेंजेस, जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाता है। एग्जांपल देखिए इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन द एज फॉर्म एज क्या है, वाइट पाउडर। कहने का अर्थ है कि जो मैग्नीशियम क्या था वो एकदम सॉलिड था, लेकिन जलने के बाद वो क्या हो रहा है, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जा रहा है। वेयर एज मैग्नीशियम इज ए मेटल एंड द रिएक्टिंग एयर कंस्टिट्यूट्स ऑक्सीजन इज ए गैस, ठीक है, जबकि हवा में क्या है हमारा ऑक्सीजन है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सम केसेस ए गैस में बी इवॉल्व, ठीक है, कुछ गैसेस निकलते हैं जैसे हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक रिएक्ट्स आइदर विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ पॉइंट इन सम केसेस ए प्रेसिपिटेट में बी फॉर्म, ठीक है, अब वो क्या है when an aqueous solution of lead nitrate is mixed with an aqueous solution of potassium iodide, yellow precipitate of lead iodide is immediately formed। फिफ्थ पॉइंट अगर हम बात करें तो द केमिकल चेंज इज ऑफ परमानेंट नेचर एंड कैन नॉट बी इजीली रिवर्स, ठीक है, परमानेंट होता है, उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल काम होता है। फॉर एग्जांपल जिंक क्लोराइड does not react with hydrogen to form zinc and hydrochloric acid, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन और जिंक मिलकर जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन जिंक क्लोराइड से हाइड्रोजन और जिंक में तोड़ना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है इन मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस द टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंज होता है अर्थात या तो बढ़ता है या तो घटता है, ठीक है, द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन केस द चेंज इज इज़ोथर्मिक in nature while there is a decrease in temperature during endothermic changes. Chemical reaction represent chemical changes. We have discussed a few cases of chemical changes. All of them are accompanied by certain reaction known as chemical reaction, ठीक है, a chemical reaction represents the change of the species, that is atom or molecule taking part in the reaction into new species। कहने का अर्थ है कि जो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, चाहे एटम मॉलिक्यूल, वो क्या होते हैं आपस में कंबाइंड होकर के न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। द रिएक्टिंग स्पीसीज आर नोन एज रिएक्टेंट एंड दोज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, उसे हम प्रोडक्ट
कहते हैं। There are some points which is important for you. First point is chemical change are caused by chemical reaction. Second point, the new substance known as product are formed during the chemical reaction. Next point, the chemical reaction are quite difficult to reverse. ठीक है, उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है. Most of the reactions cannot be reversed. Energy changes normally takes place during the chemical reaction. ठीक है, एनर्जी का चेंजेज होता है. When energy is released or given out, the reaction is exothermic. When energy is absorbed or taken up, the reaction is endothermic in nature. तो exothermic reaction are generally more common than endothermic reaction. अर्थात exothermic reaction के एग्जाम्पल ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू endothermic reaction के. This is the video for today.